फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मास। मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मास, आज के इस टॉपिक में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द पॉसिबल टेक्निक्स with the help of which we can measure the length as well as mass. As you know, length is a fundamental physical quantity. हमें जानना चाहिए कि लेंथ और डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मिनिमम कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। अगर हम एटॉमिक लेवल पर जाएं तो एटॉमिक डायमेंशन में न्यूक्लियस को जब हम मेजर करते हैं तो कितना आता है 10 to the power minus 15 मीटर, जिसको हम लोगों ने क्या बताया था फॉरमी, यानी फेम्टोमीटर। एंड द बिगेस्ट डिस्टेंस known so far is the 10 to the power 25 meter, which is radius of the universe. Okay, this is too large. So definitely in measuring a smaller distance we must apply different techniques. In measuring larger distance we should require different technique, and in measuring normal distances we will require different techniques. There are certain distance which cannot be measured by just selecting a standard, comparing that one with the help of that. So the measurement of length involves two methods. First one is the direct method and second one is the indirect method, as we have written in the board. डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, वी सेलेक्ट अ यूनिट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, how much distance we want to measure, and with the selection of a standard of length we compare that length with the chosen unit of that particular length, and that process of comparing the length or the length of the object by a chosen standard of the length is known as direct method. इसको मेजरमेंट हम कहते हैं। मेजरमेंट में डायरेक्ट मेथड इन्वॉल्व्स द कंपैरिजन ऑफ द यूनिट विद द गिवन लेंथ। सो सपोज करिए वी हैव this scale. What would be its length? Definitely the length of this scale in meter it is 0.3 meter, but in centimeter it is 30 centimeter, in inch it is 12 inch, in feet it is 1 feet. If we want to measure the length of this board, then what we have to do is definitely we have to take that length which is fit and scale, and we compare the length by putting this step by step, and we found that it is approximately 3 times this scale. The length of the board is approximately 3 times of this scale. So similarly we can compare by choosing the units centimeter, by choosing the units meter. Meter is a standard of taken in order to measure the length of any quantity. So in the range of 10 to the power 4 meter to 10 to the power minus 3 meter, meter rod is taken as a standard, you can say. Okay, 10 to the power 4 मीटर से 10 to the power minus 3 मीटर, that is 1 मिलीमीटर तक हम मीटर रॉड लेते हैं, क्योंकि मीटर रॉड की जो मिनिमम वैल्यू है मेजरिंग की वो क्या है 1 मिलीमीटर. ओके,
तो ये इसके अलावा अगर इससे स्मॉलर डिस्टेंस हमें मेजर करनी है तो व्हाट वी विल डू, क्या करेंगे, डिस्टेंस अप टू 10 to the power -4 मीटर मीन्स 0.1 मिलीमीटर तक, ओके, वी यूज वर्नियर कैलिपर्स up to 10 to the power -5 meter we use screw gauge। इसको आगे प्रैक्टिकल जब हम लोग 11th में कराते हैं या आप लोग करेंगे तो वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज का डिटेल आप जानेंगे। ये स्मॉलर डिस्टेंस को एक्यूरेसी के साथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सपोज करिए आपको एक पतला वायर गिवन है और वायर की लेंथ 1 mm से भी कम है या 1 mm से थोड़ा ज्यादा है, तो व्हाट इज द एग्जैक्ट डायमीटर ऑफ द वायर, ओके, डायमीटर हम कह रहे हैं लेकिन ये भी ए सॉर्ट ऑफ लेंथ ही होगी। व्हाट इज द रेडियस ऑफ वायर, इट इज ऑल्सो ए सॉर्ट ऑफ लेंथ। तो इसको मेजर करने के लिए हम स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हैं। सपोज करिए कोई एक कॉइन है, कॉइन की रेडियस मेजर करनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वर्नियर कैलिपर्स इस्तेमाल करेंगे। तो दीज आर द टेक्निक्स ऑफ डायरेक्ट मेथड which are used in order to, which are applied in order to measure certain objects की लेंथ्स को, ओके। नाउ सपोज करिए हमें मेजर करना है एटॉमिक डायमेंशन लेवल पे जाए, जैसा कभी हमने बताया 10 to the power -15 मीटर डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस है एंड 10 to the power -10 मीटर डायमेंशन ऑफ एटॉमिक रेडियस है। तो अगर इसको मेजर करना हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेटली वी कांट मेजर इट डायरेक्टली, हम इसे डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं। तो फॉर मेजरिंग दैट मच ऑफ स्मॉलर लेंथ वी मस्ट यूज द other techniques that is called indirect methods. So here indirect method, which is the second method of measuring the length, involves following different methods as well. First one is the echo, which is called reflection or reflection method. Echo method, echo आपको पता है, any sound if it is reflected back from any obstacle is termed as echo. आप कुएं के पास जा करके अगर खड़े होकर के तेजी से बोलें तो यू विल फाइंड इको ऑफ योर ओन साउंड, ओके। ऐसे ही कहीं हिली एरिया में चले जाएं जहां टॉल माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, और आप खड़े होकर के एक जगह से बहुत तेजी से नॉइज क्रिएट करें तो आपको आफ्टर सम टाइम यू विल हियर योर ओन voice, that is reflected voice or sound, that is called also echo. So how we will apply this echo in order to measure this method is used in order to measure the distance of hills or any obstacle at certain distance, ओके। तो करते क्या है, जैसे सपोज करिए ये एक हिल है, ओके, मान लीजिए कि कोई हिली एरिया है और आप यहां से खड़े होकर के साउंड क्रिएट कर रहे हैं, साउंड, व्हाट विल हैपन, साउंड यहां जाएगी और ये रिफ्लेक्ट बैक होकर के, बाउंस बैक होकर के फिर आपके ईयर में पहुंचेगी। तो द डिस्टेंस सपोज करिए अगर यस है और स्पीड ऑफ साउंड सपोज करो वी है एंड टाइम टी बी द टाइम टेकन टू reach the observer after reflection. साउंड जब क्रिएट हुआ किसी भी ऑब्जर्वर के द्वारा, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा,
तो वहां से जाकर के रिफ्लेक्शन के बाद पुनः वहां जब पहुंच रहा टी विद टाइम, तो हम कैसे इस डिस्टेंस को निकालेंगे? जाकर के तो नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर वैली है, जाकर के मेजर करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे इसके लिए? डेफिनेटली एक बार गया और दोबारा आया, विथ स्पीड v ही आया क्योंकि साउंड ही है। तो डेफिनेटली 2s इज इक्वल टू v इंटू टी। एज यू नो डिस्टेंस इज इक्वल टू हाउ, कैसे लिखा जाता है डिस्टेंस को? स्पीड इंटू टाइम। तो डेफिनेटली v स्पीड है, t टाइम है, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v इंटू टी अपॉन 2, ये हो गया। तो डिस्टेंस बाय नोइंग द स्पीड ऑफ साउंड, एज यू नो द साउंड ट्रेवल्स विथ 332 मीटर पर सेकेंड इन एयर। तो ये तो पता ही है आपको साउंड की स्पीड एयर में क्या है। टाइम केवल आप मेजर करिए कि जब साउंड क्रिएट की गई और जब उसका इको यानी रिफ्लेक्टेड साउंड फिर से आकर के वो साउंड उसी तरह के फिर सुनाई दे रही है, तो डेफिनेटली आप जान लीजिए कि वो टाइम मेजर करना है। दैट गिव्स यू इनडायरेक्टली द लेंथ और द डिस्टेंस ऑफ द हिल और द ऑब्स्टेकल विच इज नॉट मेजर्ड बाय डायरेक्ट मेथड। तो इजिली आप इससे कर लेंगे, इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कोई बहुत टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट है, लेजर मेथड का भी इस्तेमाल किया जाता है। किस मेथड का? लेजर मेथड का। लेजर स्टैंड फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ओके, लेजर का फुल फॉर्म है कि लाइट एम्प्लीफिकेशन, यानी बहुत एम्प्लीफाइड लाइट होती है बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये एक विशेष टेक्निक है। इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट डिफरेंट कलर्स की नहीं, एक कलर की, पर्टिकुलर कलर की, जो कि हाईली मोनोक्रोमेटिक और डायरेक्शनल लाइट होती है, एंड इट विल ट्रेवल अ वेरी लार्ज डिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ hundreds, thousands kilometer without any deviation, without scattering least होती है. So this laser light will also be used to measure the distance of a very large distance of object because of reflected light which is emitted from the laser by measuring the time as well. तो यहाँ से जब हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे, डेफिनेटली इट कम्स आउट टू बी c into t by 2. जैसे मान लीजिए यहाँ से लेजर लाइट डाल रहे हैं और जो ऑब्स्टेकल है बहुत दूर है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर के फिर आएगी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है c से लिखी जाती है, या वेलोसिटी ऑफ लाइट। लेजर चूंकि लाइट इमिट कर रहा है तो इसलिए उसकी स्पीड फिक्स हो जाएगी, या वेलोसिटी c। 3 into c की वैल्यू क्या होती है? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। आप समझ सकते हैं कितनी स्पीड से होगा। तो यू हैव टू मेजर द ओनली टाइम which is taken by the laser light in order to go at a very large distance and again reflected back to the same point. And by knowing that much of time, you have an idea about the distance of that particular object which is not measured by direct method. Now here we have second method which is called sonar. So sonar is a technique. Sonar stand for sound navigation and ranging. Sonar, sound navigation and ranging. It is used in order to measure the distance of any icebergs or seabeds from any ship or submarine
ओके, सबमरीन पनडुब्बी या कोई शिप है, अगर वो ट्रेवल कर रही है तो उस सबमरीन से या शिप से जो ऑब्स्टेकल आने वाला आइसबर्ग है, बहुत लार्ज डिस्टेंस पर है या बहुत पास आ गया, नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि सबमरीन्स वाटर के इनसाइड चलती हैं, तो उनके लिए ये निश्चित रूप से जानना जरूरी है, जो सबमरीन्स को ड्राइव कर रहे हैं या जो उसमें बैठे लोग हैं, खास करके जो हमारे नेवी के सैनिक हैं, कि कहां पर कौन सा ऑब्स्टेकल अचानक आ न जाए कोई। तो इसके लिए सोनार टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, और इस सोनार टेक्निक से वही 2s डिस्टेंस ऑब्स्टेकल की इज इक्वल टू v इंटू टी करते हैं। v इज द वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासाउंड वेव्स उसमें प्रोड्यूस की जाती हैं, तो s इज इक्वल टू v इंटू टी अपॉन 2। हियर अल्ट्रासाउंड वेव्स और transmitted from the ship to the obstacle, है ना, ऑब्स्टेकल। और इसको ऐसे समझ लीजिए, अब सी बेड को कैसे पता करेंगे। मान लीजिए ये कोई शिप है आपका, यहां पर सोनार लगा है टेक्निक, तो सोनार से साउंड ये सी बेड्स है, तो यहां तक मान लीजिए आया और फिर रिफ्लेक्टेड बैक यहाँ आया, तो ट्रांसमीटर रिसीवर दोनों होता है। बाय मेजरिंग टाइम वी हैव डिस्टेंस इज इक्वल टू v इंटू टी अपॉन 2। और अल्ट्रासाउंड वेव्स वाटर में किस स्पीड से ट्रेवल करेगा ये आपको पता है, पहले से वेल नोन है, तो आप सोनार टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, दीज आर द इनडायरेक्ट मेथड्स एज यू हैव क्लियर। Now the third method is the radar technique, and the radar technique, let me first of all know what radar is stand for. RA means radar, D stand for detection, A for and और R for ranging। यानी रेडियो वेव्स की मदद से किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना, and to find out what is its range and what is its elevation। जो सोफिस्टिकेटेड राडार इस समय हैं वो केवल इसकी डिस्टेंस नहीं बताते हैं कि वेयर द मूविंग ऑब्जेक्ट आर, बट दे गिव्स अस द इंफॉर्मेशन दैट व्हाट इंक्लिनेशन वो है, व्हाट इज देयर एलिवेशन क्या है, और whether they are approaching towards or receding from the radar station. These informations can be recorded with the help of radar techniques, and these are the techniques which are very much utilized near the border side, because तमाम और एविएशन सेक्टर में इसका इस्तेमाल होता रहता है, क्योंकि हमारे पास एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स जो होते हैं वहां पर राडार्स लगे होते हैं, जो कि जो भी आ रहे हैं फ्लाइट या हवाई जहाज के अपने या किसी फॉरेन के, तो उनको डिटेक्ट करते रहते हैं हर समय में, उनका एल्टीट्यूड क्या है। तो इसमें भी वही काम करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, समझिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसमिट की जाती हैं। और मान लीजिए ये कोई प्लेन आ रहा है ना, अब यहां पर कोई राडार स्टेशन है, तो यहां से या टकरा करके फिर लौटेगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज सी। तो यहां पर भी एस क्या मालूम चलेगा, सी इंटू टी बाई 2। ध्यान रहे कुछ समय के पश्चात फिर एस को मेजर करेंगे, अगर एस डैश लेस देन एस है, इसका मतलब द ऑब्जेक्ट इज रिसीविंग अप्रोचिंग टुवर्ड्स द टारगेट और द राडार स्टेशन, एंड अगर ये एस डैश बढ़ गया, इसका मतलब ये रिसीव कर रहा है, दूर जा रहा है। अब किस हाइट पर है, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, वहीं पर स्थिर है, इसका पता लगाने के लिए यस और एस डैश में अंतर नहीं है। अल्टीट्यूड उसका क्या है, तो कुल मिलाकर के उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो रिफ्लेक्टेड पोर्शन आ रही है, उसकी इंटेंसिटी से, उसकी एक तरह से टाइमिंग से, ये सारी इंफॉर्मेशन से गैदर की जाती हैं। सो राडार इज अ वेरी इंपॉर्टेंट
tool in order to measure the moving target distance. Okay, now let us talk about the triangular method, which we call trigonometrical method of measuring certain height. This method is used to measure the height of any object by measuring the angle formed by the object at certain distance from it. इसको कैसे करते हैं, इसका पूरा मतलब समझिए. सपोज करिए यू हैव गिवन दिस ऑब्जेक्ट ऑफ सर्टेन हाइट h. ये कोई ट्री भी हो सकता है या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है. मान लीजिए ट्री ही है, सपोज करिए ट्री. तो ऑब्जर्वर कहाँ है? एट सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेट दिस डिस्टेंस इज x. ये वेल नोन है, आप यहां पर आ जाए. एंड मेजर द एंगल, टोटल एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, लेट दिस बी थीटा. ओके, ये थीटा एंगल है, ऐसा मान लेंगे. तो क्या करेंगे इसके लिए? ये पता है कितनी दूरी से हम पूरा देख रहे हैं कि पूरा का पूरा एंगल फॉर्म हो रहा है, ये नहीं पता है. दिस वन इज द होल स्ट्रक्चर. सपोज दिस इज O and this one is AB. So AB is our object whose height we want to measure. The distance from the base of the object to the observer is assumed to be x, and this can be measured directly. And by measuring the angle formed or subtended by the particular object and the observer, we can have an idea about the height of the object. Let me do it. And this method is also called trigonometric method. आप लोग height and distance पढ़े होंगे trigonometry में, तो very similar to that one we can calculate the height. What trigonometric ratio can be utilized here? As you know, this one is the normal in right angle triangle because it is front side of the angle, and this one is the base of the right angle triangle. So by knowing these two and angle, definitely we must have to apply ratio tangent tan theta, which is equal to AB upon AO, that is equal to H upon X. So we have H is equal to X tan theta. So this is the method which is we call triangular method or trigonometric method, trigonometrical method, which can be used to measure the height of certain objects which are very large. But in order to measure a very large distance, that is terrestrial objects, बहुत अधिक दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो व्हाट वी विल डू, कैसे करेंगे? सपोज करिए यू हैव आई स्टार, और मान लीजिए मून है. ओके, क्या है? मून है. एंड वी आर इंटरेस्टेड टू मेजर the diameter of the moon itself. So what we have to do is that सबसे पहले हम अर्थ के किसी एक प्लेस पर यहाँ के दोनों एंड से हमें देखेंगे what is the angle subtended by the whole object at the moon, at the earth. So let it be theta. और इसको हम मान लेते हैं डिस्टेंस क्या है? R. So here is the diameter of the moon, let it be D, and this is R. So from the आपको R कैसे पता है? Angle is equal to R upon radius. क्योंकि ये बहुत अधिक दूरी पर है, तो इस दूरी की तुलना में इस छोटे इसको हम क्या मान लेते हैं? R मान सकते हैं. इस दूरी की तुलना में इसको हम R को ट्रीट करें, अप्रोक्सीमेशन लें, तो R के क्या हो जाएगा? D अपॉन R. तो ये हो जाएगा एंगल थीटा सपोज करिए. सो वी हैव D इज इक्वल टू
r इंटू डी माने डायमीटर, आपको पता चल गया। रेडियस डिस्टेंस, और क्या है, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, यानी पृथ्वी से, अर्थ से मून की डिस्टेंस मेजर किए हों, और एंगल पूरे के पूरे मून के द्वारा अर्थ पर कितना बन रहा है किसी एक प्रेक्षक के देखने से। तो भाई नोविंग थीटा शुड बी इन व्हिच यूनिट, इट इज इन रेडियन, आर मीटर में होगा, तो डी डेफिनेटली मीटर में आ जाएगा। तो दिस इज वन टेक्निक आल्सो इन ऑर्डर टू मेजर द साइज ऑफ एनी, this is the measurement of size of any terrestrial object. About the one of the most important method which is very much used in order to measure the terrestrial objects, that we call parallax method. What we call is parallax method. This method is used to measure. This is used to measure the distance of terrestrial objects such as stars or any very large distance. Let me first of all know what is parallax. What is parallax? Okay, parallax is a technique. Suppose if you look your forefinger by closing your left eye, and after some time look the same finger at the same place by closing your right eye, then what you will observe is that the position of this finger with respect to these two left and right eyes will be changed, and this change in the position of object with reference to the background is called parallax. So let us draw a figure here. Suppose object is placed here, and this one is your left and right position of your object. So इसमें हम क्या करेंगे, एंगल कितना फॉर्म हो रहा है इन दोनों के बीच में. This is your left and this is right, and the distance between this is called basis, and let this is theta. Okay, so we can calculate the distance, that is small d. Distance of the object from the basis can be calculated, or you can say this is capital D. Okay, so B is the basis, and from the technique angle is equal to arc upon radius. That is, arc is here basis B, radius is small d, angle is theta. So D can be written as B upon theta, and theta ought to be in radian. Theta किसमें होगा, रेडियन में होगा. तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करके हम किसी भी टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट को अर्थ से हाउ मच डिस्टेंस पर है ये, इसकी गणना करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. सो लेट अस कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ a terrestrial object by using that technique. That is, suppose ये आपका O कोई एक स्टार है, and you are at अर्थ पर आप हैं. अर्थ के दो पॉइंट्स आप ले लीजिए, E1 and the second point E2. Okay, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर E1 और E2 दो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अर्थ के एक सर्टेन प्लेस पर करते हैं, डेफिनेट डिस्टेंस पर लेते हैं, और इसके रेफरेंस में ऑब्जेक्ट जो हमारा स्टार है, सपोज करिए दिस इज स्टार, इसकी हम अपने यानी ऑब्जर्वर अपने हेड के ऊपर
इसको हम बोल्ड से ड्रा करते हैं। और यहां पर एक निश्चित रूप से एक स्टार जरूर होगा। लेट दिस इज O डैश, O डबल डैश। उससे इसका ले लेते हैं कितना एंगल फॉर्म होगा। लेट दिस एंगल इज φ2 एंड लेट दिस एंगल इज φ1। तो निश्चित रूप से अगर इसको हम सेंटर पर ड्रा कर दें तो ये φ1 अल्टरनेट एंगल से, ये φ2 अल्टरनेट एंगल से। सो दिस फाई कैन रिटन एज इक्वल टू φ1 प्लस φ2। अब ये डिस्टेंस आपकी पहले से पता है। लेट अस सपोज दिस इज d, या कुछ भी डिस्टेंस मान लीजिए आप इसको s ले लेते हैं और ये आपकी d है, ओके, या r मान लीजिए, जो भी लेना चाहें, ये r ले लीजिए। एंगल φ1 प्लस φ2 एंड r के क्या हो गया, E1 E2 दैट इज इक्वल टू s। रेडियस कितनी हो गई, r और d, जो भी लेना चाहें। तो φ1 प्लस φ2 इज इक्वल टू r का अपॉन रेडियस, r का आपका s है, अपॉन रेडियस से d है, यह स्मॉल r है। स्मॉल r इज इक्वल टू s अपॉन φ1 प्लस φ2। ध्यान रहे, वेरी लार्ज डिस्टेंस पर कोई एक स्टार है, उस स्टार की अर्थ से डिस्टेंस मेजर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल we select a point on the earth surface and look this one is star of this star, and look measure the angle between this star and the star which is overhead of the observer, that is φ1, and we do the similar exercise here. φ2 be the angle, and it means φ1 plus φ2 be the angle which is formed between E1 and E2. Since E1 E2 is well known, so the distance of the object, that is star O, from the earth can be calculated by this technique. Let me अगर आप इसको लिखना चाहें तो what is parallax? The change in the position of the object with respect to background is known as parallax. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होना पृष्ठभूमि के सापेक्ष, जैसा कि हम लोगों ने अपने लेफ्ट आई से राइट को क्लोज करके और राइट आई से लेफ्ट को क्लोज करके देखा, तो यही पैरेलैक्स कहलाता है। इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके हम लोग लंबी से लंबी दूरियों को, लार्जर डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। These are the some important methods or techniques which are used in order to measure the larger distance of any object by indirect methods. डायरेक्ट तो मेजर कर सकते हैं, इनडायरेक्ट इंपॉर्टेंट है। और स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स जो आपकी हैं, जैसे एटॉमिक साइज है और लीजिए न्यूक्लियर की डायमेंशन है, दीज आर आल्सो कैन बी मेजर्ड बाय सम अदर टेक्निक्स। तो अवोगाड्रो हाइपोथेसिस से हम एटॉमिक रेडियस को मेजर कर लेंगे। अवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्या है कि अवोगाड्रो ने बताया कि जो किसी भी मटेरियल में जो एटम्स उसके होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितना उस मटेरियल का वॉल्यूम होता है उसके 2/3 पोर्शन में ही होते हैं। क्योंकि अगर आप देखें कि छोटे छोटे एटम्स अगर पास पास रखे जाए तो डेफिनेटली कुछ न कुछ स्पेस उनके बीच में बचता है, तो दे कवर ओनली 2/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम। और अवोगाड्रो नंबर कैपिटल N होता है। अगर स्मॉल m मास का मटेरियल है तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, और मीन्स 1 ग्राम मटेरियल में कितने एटम्स होंगे, और 1 ग्राम मटेरियल का जितना वॉल्यूम है उसका 2/3 इसके नंबर ऑफ एटम्स और उसके एक एटम के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके अगर हम देखें 2/3 वॉल्यूम के इक्वल रखें, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, तो वी विल हैव निश्चित रूप से एक्सप्रेशन ऑफ मेजरिंग द सॉर्ट ऑफ रेडियस ऑफ द एटम इटसेल्फ। तो इस तरीके से हम लोग मेजर कर सकते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मेजरमेंट ऑफ मास। ओके, अब हम आगे इस वाला डिस्टेंस की बात अभी किया था, इसके पहले हम लोग जो बात कर रहे थे लार्जर डिस्टेंस की थी।
Now let us talk about mass is of two types. First one is the inertial mass. Okay, what actually it is? If a body is in translational motion under the effect of external force in absence of gravity, okay, then the mass is termed as inertial mass. और इसे मेजर कैसे करेंगे? इसे मेजर करने के लिए इनर्शियल balances are used to measure the such mass. इसमें क्या करते हैं? निश्चित रूप से बॉडीज जो इनर्शियल मास की बात हम कर रहे हैं वो ट्रांसलेशनल मोशन में है, तो बिकॉज ऑफ दैट एक्सटर्नल फोर्स देयर इज ए सॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी. सो यू कैन मेजर दिस मास ऑफ वन बॉडी टू मास ऑफ अनदर बॉडी, A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर, क्योंकि फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है? ma होता है. तो जिसका मास कम होगा कंपैरेटिव अगर देखें तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा उस बॉडी में. इसे हम इनर्शियल बैलेंस में इस मेथड से इस्तेमाल करते हैं, मेजर करते हैं 2π√m/k. एक पैन होता है जिस पैन में ये मास कोई एक रखा गया है ना, और यहाँ एक स्ट्रिप लगी होती है, इसे कहीं से क्लैम्प किया रहता है और ये इसमें ऑसिलेट करता है. तो टाइम ऑफ ऑसिलेशन T मेजर कर लेते हैं और K इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम रहता है. तो कुल मिलाकर टाइम ऑफ ऑसिलेशन मेजर करके हम मास इनर्शियल कैलकुलेट कर लेते हैं. यहां से देखें तो T स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² इंटू m/k. तो m कह सकते हैं इज इक्वल टू क्या होगा? T स्क्वायर इंटू K अपॉन 4π². इसी तरीके से अगर दो मास ले लें m1 m2, इनको मेजर करें तो T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर आएगा. ये बाय मेजरिंग द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द मास इन ए स्टील एंड क्लैम्प्ड वुडन पैन है ना. तो स्ट्रिप आपकी स्टील की है और यहाँ वुडन ब्लॉक से ये टाइटली बाउंड है और ये इसमें ऑसिलेट करता रहता है. टाइम ऑफ ऑसिलेशन मेजर करके हम कंपैरेटिवली अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की मास का कंपेयर कर सकते हैं. यहाँ पर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस को नेग्लेक्ट किया गया है. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द ग्रेविटेशनल मास. नाउ इफ द बॉडी इज in under the effect of gravity in absence of motion, then the mass measured is called gravitational mass of the body. ओके, यहाँ पर मोशन को स्टॉप माना गया है और बॉडी किसमें है? अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है. तो उस समय जो मास मेजर करेंगे दैट इज टर्म्ड एज ग्रेविटेशनल मास. ओके, तो इसके लिए फिजिकल बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं. फिजिकल बैलेंस में निश्चित रूप से
एक पतली सी नुकीली एक वो होता है, पॉइंटर होता है। दोनों तरफ लीवर सिस्टम से जुड़े हुए आपके पैन्स होते हैं, इधर भी एक पैन लगा होता है और इसको यहाँ पर एक लगा रहता है, स्केल लगी होती है। तो ये इसमें एक में रख करके और इसमें एक पैन रख करके इससे हम मेजर कर सकते हैं ग्रेविटी। सेकंड मेथड जो आपका है वो है स्प्रिंग बैलेंस। इसमें स्प्रिंग बैलेंस, अब स्प्रिंग बैलेंस किस पे काम करता है? इलास्टिक प्रॉपर्टी पर, दैट इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या कहता है कि जो भी आपका वेट है किसी भी बॉडी का इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। जैसे मान लीजिए एक स्प्रिंग बैलेंस हम लें, किसी भी चीज को इस पर लटकाएं तो क्या होगा? एक्सटेंशन होगा, इसका एक्सटेंशन एक्स होगा। सो वेट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो हुक्स लॉ वैसे है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहाँ स्ट्रेन का मतलब है कि स्प्रिंग में एक्सटेंशन, तो वेट जो है x के प्रोपोर्शनल है, तो W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू x1 अपॉन x2। यानी बाई कंपेरिजन द एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग one can compare the weight of two bodies. If the weight of one body is standard, then the weight of the second body will be known. और weight जो हम कह रहे हैं, क्योंकि W इज इक्वल टू क्या होता है? mg होता है, तो निश्चित रूप से m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू क्या होगा? W1 अपॉन W2, दैट इज x1 अपॉन x2। यानी हमको मिला m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू x1 अपॉन x2। तो ये किस मेथड से मिला? ग्रेविटेशनल मास है ये, चाहे इस फिजिकल बैलेंस से मेजर करें या स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करें। दीज both techniques are utilized for measuring the gravitational mass, and for inertial mass we must apply the inertial balance, that is the oscillation of the body whose mass we want to measure. By measuring the time period of the oscillation we can have an idea of the mass of the body itself. By this formula m1 upon m2 is equal to definitely t1 square upon t2 square। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन नोट कर लेंगे तो हमें मास की वैल्यू पता चल जाएगी, इनर्शियल मास की वैल्यू। और इसी तरीके से सिमिलरली वी कैन मेजर द टाइम, और टाइम का रेफरेंस हमारा क्वार्ट्ज क्रिस्टल हैं, उनके वाइब्रेशन से मेजर कर सकते हैं, जैसे सोलर डे के हिसाब से मेजर कर सकते हैं। सेकंड डिफाइन ही किया गया है, सेकंड के अलावा कई यूनिट्स हैं। और रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस also used to measure the time of any event। डीके प्रोसेस, कार्बन डेटिंग वगैरह से भी टाइम की कैलकुलेशन की जाती है। तो दीज आर द सम बेसिक टेक्निक्स ऑफ मेजरिंग मास, लेंथ एज वेल एज टाइम। जैसा कि आपने देखा कि लेंथ के मेजरमेंट की बहुत सारी टेक्निक्स थी, मास और टाइम की एक लिमिटेड है। तो हम लोग मेजरमेंट चैप्टर या कहें कि जो आपका मेजरमेंट पार्ट है लगभग उसको कवर किए, जिसमें हमें जो पढ़ना अपने हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, और अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर फर्स्ट यूनिट, एंड दिस इज वेरी वेल asked in competition as well as in your एग्जाम, क्लास 11th एग्जाम और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में डायमेंशनल एनालिसिस के बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसके पहले का जो पार्ट आप लोग पढ़ रहे थे वो कॉन्सेप्चुअल था, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल और कॉन्सेप्चुअल दोनों है। हम इसको अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज बस इतना ही, फिर ओके, बाय बाय।